हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों, हम डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड और कैरी करने का काम करता है। डीएनए कंट्रोल्स एंड रेगुलेट ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, DNA is present in each and every cell of the body in equal amount. Now, ये सब सक्सेसफुली करने के लिए DNA have to perform different functions. और DNA जो functions perform करता है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. ओके, some functions they are now known as autocatalytic function and some functions of DNA is known as heterocatalytic function. In autocatalytic function means DNA directs formation of itself, means when DNA directs the formation of DNA molecule, then that function of DNA is autocatalytic. But when DNA directs the function other than itself, means when DNA it involve in formation of RNA molecule or when DNA it involve in formation of protein molecule, okay, such type of function of DNA it is heterocatalytic. ओके, तो बच्चों इसका मतलब है कि डीएनए अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है. डीएनए दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है ऑटोकैटालिटिक, या फिर डीएनए आरएनए को भी बनाता है या प्रोटीन को बनाता है हेटेरोकैटालिटिक. ओके, सो इन दिस वे डीएनए हैव ऑटोकैटालिटिक रोल एंड हेटेरोकैटालिटिक रोल बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, अब बच्चों जैसे हम जानते हैं कि डीएनए इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी इन इक्वल अमाउंट. ओके, नाउ सपोज इट इज वन ऑफ द पेरेंटल सेल ऑफ आवर बॉडी having particular amount of DNA, and when it will undergo mitosis, cell division, we know from parental cell there is formation of two daughter cells. Okay, here in the nucleus there is particular amount of DNA in both the daughter cell. अब बच्चों जब सेल डिवीजन होगा, जब माइटोसिस होगा, तो एक सेल से दो सेल बने. सपोज इन पेरेंटल सेल the amount of DNA it is suppose 5 picogram. In first daughter cell and second daughter cell the amount of DNA it will be 5 picogram and 5 picogram. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि दोनों डॉटर सेल में और जो पेरेंटल सेल जो है जिससे ये दोनों डॉटर सेल माइटोसिस में बने हैं, ये तीनों में अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इक्वल है. ओके, अब ये कब पॉसिबल होगा? इसका मतलब यह है कि सेल डिवीजन के पहले ये जो पेरेंटल सेल है उसका जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है. ओके, अपने क्वांटिटी को डबल करता है. तभी ये पॉसिबल है कि दोनों डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में डीएनए का अमाउंट. ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें वन डीएनए मॉलिक्यूल it will produces such type of two daughter DNA molecule. Okay, the process in which one parental DNA molecule it will produces two daughter DNA or two replicas of itself. That particular process it is now known as DNA replication. Okay, अब ये DNA replication की process कब होगी? When it will occurs, so it will takes place just before cell division. So it will occurs during cell cycle. In cell cycle we know there is a resting phase which is known as interphase. इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. अब बच्चों हमको पता है इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस. G1 फर्स्ट गैप फेज, S synthetic phase and G2 second gap phase. Okay, so actually in this 3 subphases, S phase of interphase, the replication of DNA it will occur. Okay, तो बच्चों DNA replication क्या होता है ये हमने देखे. When one
DNA molecule produces two daughter DNA. That the process is known as DNA replication. DNA replication, when it will occurs during interphase of cell cycle, that is S or synthetic phase of interphase. Okay, so that is about the replication process. Now in overall replication, suppose it is DNA molecule, and when it will be undergo replication, so during that replication, first it will be अनकॉइल. डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है रेप्लिकेशन के टाइम, एंड दैट ऑन दिस सेपरेटेड स्ट्रैंड देयर विल बी नाउ फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स. ओवरऑल प्रोसेस अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन का अगर देखते हैं तो ये डीएनए का पेरेंटल डीएनए है. पेरेंटल डीएनए को जब रेप्लिकेशन करना होगा तो वो अपने दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करेगा, सेपरेट करेगा, और वो सेपरेटेड स्ट्रैंड पर डीएनए की न्यू स्ट्रैंड बनेगी, लाइक दैट. Okay, and finally there will be formation of two daughter DNA molecule like that. एक DNA molecule से दो daughter DNA molecule इस टाइप से बने. अब बच्चों ये पहले daughter DNA में अगर हम देखते हैं तो out of two strand, one strand it will be taken or it will be conserved from the parental one. Okay, but the second strand it is newly synthesized or newly formed. Second DNA molecule में भी अगर देखते हैं तो out of two strand, ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रैंड दिख रही है, इट इज डायरेक्टली कंजर्व फ्रॉम द पेरेंटल वन, पेरेंट से ली गई, एंड सेकेंड जो रेड कलर से लेबल की गई है इट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड. ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि इन ईच डीएनए मॉलिक्यूल आउट ऑफ टू स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड इट इज फ्रॉम पेरेंटल डीएनए एंड सेकेंड स्ट्रैंड इट विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड. ओके, सो सच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इट इज नाउ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव टाइप. ऐसे रेप्लिकेशन को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, तो वैटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है. ओके, अब रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होगी? ओके, यहाँ पर तो हमने डायरेक्टली बता दिया ऐसा ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है. ओके, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. ओके, एंड देयरफॉर वी हैव टू स्टडी द एक्चुअल प्रोसेस और एक्चुअल mechanism ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. सो mechanism we can say or process we can say of डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस या डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं. कैसे एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनने जा रहा है. ओके, now suppose it is DNA molecule. We know structure of DNA: two strands, helically twisted, spirally coiled. Okay, they are held together with the help of hydrogen bonding, like that. Okay, that is double stranded DNA. अब बच्चों DNA की नई स्ट्रैंड अगर बनाना है, okay, suppose there is now have to formation of new strand, we know it is made up of polynucleotide. इसका मतलब नई स्ट्रैंड बनाना है मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, एंड द न्यूक्लियोटाइड्स वेयर दे आर नाउ प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ सेल. तो ये जो प्रोसेस हो रही है रेप्लिकेशन की, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो रही है. ओके, so in cell nucleoplasm there are many free nucleotides, okay, and they are involved in formation of polynucleotide. पर बच्चों प्रॉब्लम अब ये रहेगा कि वो जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है इन न्यूक्लियोप्लाज्म दे आर नाउ इनएक्टिव. ओके, तो सबसे पहली स्टेप रहेगी डीएनए रेप्लिकेशन की, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं जो इनएक्टिव है, जिसमें एनर्जी नहीं है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना होगा. ओके, नाउ सपोज 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर. वी नो एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. ओके, दे आर रिस्पेक्टिव डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एंड
initially they are present in the form of monophosphates. Okay, so we can say deoxyadenosine monophosphate, okay, deoxyguanosine monophosphate, deoxythymidine monophosphate, deoxycytidine monophosphate. So they are present in the form of respective monophosphate. Okay, इनको हम बोलेंगे inactive न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो ये इनएक्टिव है. अब इन फर्स्ट स्टेप इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको एक्टिव बनाया जाएगा, और ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स. ओके, एंड एंजाइम दैट इज फास्फोरिलेज. ओके, तो फास्फोरिलेज एंजाइम और एटीपी की मदद से इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उसमें फॉस्फेट्स दिए जाएंगे. ओके, सो deoxyadenosine monophosphate, it will be now convert into deoxyadenosine triphosphate. Okay, so like that deoxyadenosine triphosphate. बाकी भी उसी मैनर से deoxyguanosine triphosphate, deoxythymidine triphosphate, deoxycytidine triphosphate. So respective monophosphates, it will be converted into respective triphosphates. Okay, so in this way, there in presence of phosphorylase enzyme and ATP molecule, inactive nucleotides, they will now convert into active nucleotides. वो active nucleotides में convert होंगे. Okay, and they will have now energy. Okay, so in this way, that will be first step in mechanism of DNA replication. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते सेकेंड स्टेप के बारे में. Now, सेकेंड स्टेप है ओरिजिन. Now suppose it is DNA molecule, double stranded, helically twisted like that. Okay, DNA पर अब ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट होने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है. इनिशिएट और स्टार्ट. ओके, सपोज ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर से जिसके आगे से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने जा रही है. ओके, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज नाउ नोन एज ओरिजिन, और इट इज नोन एज ओसाइट, और इट इज नोन एज ओराइन. ठीक है बच्चों, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? डीएनए. डीएनए पर ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ओके, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है. दैट पर्टिकुलर पॉइंट की जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इट इज नोन एज ओरिजिन और ओ साइट और ओ आर आई साइट. ओके, सो ये जो डीएनए का सेगमेंट है जहां पर ओरिजिन सिचुएटेड है, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए इट इज आल्सो नोन एज रेप्लिकॉन. उसको रेप्लिकॉन कहा जाता है. ओके, अब बच्चों क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए इट इज लॉन्गर, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी ओरिजिन, मोर देन वन ओरिजिन. इन प्रोकैरियोट्स जनरली देयर आर सिंगल ओरिजिन. ओके, सो इन दिस वे फर्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द ओरिजिन. ओके, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देयर विल बी नाउ अनवाइंडिंग. देखो अनवाइंडिंग क्या होगा. नाउ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के पॉइंट से जो स्ट्रैंड्स है, द स्ट्रैंड्स दे स्टार्ट सेपरेटिंग. जो स्ट्रैंड्स ऐसे हेलिकली ट्विस्टेड है वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होगी. ओके, अब दोनों स्ट्रैंड जो है वो हेलिकली ट्विस्टेड है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. तो कुछ एंजाइम्स का रोल के बारे में यहां पर देखते हैं. ओके, फर्स्ट एंजाइम, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डीएनए हेलिकेस. ओके, डीएनए हेलिकेस एंजाइम, it will helpful to break hydrogen bonds.
तो डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज नाउ डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, जिसने जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स दे आर हेल्ड टुगेदर। ओके, दैट इज डीएनए हेलिकेज हो गया। सेकेंड एंजाइम इट विल बी नाउ एंडोन्यूक्लियस। उस बुक में उसको टोपो आइसोमरेज भी दिया हुआ है। ओके, सो एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस अब क्या करेगा, देखो बच्चों, इट विल कट एंड रीजॉइन। ओके, तो पर्टिकुलर ओरिजिन के पॉइंट के पास डीएनए स्ट्रैंड को वो कट करेगा। ओके, तो दोनों स्ट्रैंड इसके पहले ट्विस्टेड थी। ओके, तो दोनों का कॉइलिंग टेंशन कम करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। इट विल बी कट बाय दैट एंडोन्यूक्लियस। ओके, फिर कॉइलिंग टेंशन रिलीज हो जाएगा, फिर से दैट टू पॉइंट्स दे विल बी जॉइन टुगेदर। ठीक है, और कट और रीजॉइन करने का काम, तो कट मीन्स आल्सो इट इज नोन एज निक। ठीक है, तो कट और रीजॉइन करने का काम अब यहाँ पर वो जो एंजाइम करेगा वो रहेगा एंडोन्यूक्लियस। तो अनवाइंडिंग के लिए पहला एंजाइम डीएनए हेलिकेज, दूसरा एंजाइम हमने देखे एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, और एक एंजाइम यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। अब ये दोनों स्ट्रैंड ट्विस्टेड है। ओके, जैसे हम रोप है और उसके स्ट्रैंड्स को अगर सेपरेट करते हैं तो फिर से उसमें वापस टेंडेंसी रहेगी रिकॉइल होने की, तो वापस रिकॉइल नहीं होना चाहिए करके और एक एंजाइम यहाँ पर मदद करेगा जिसका नाम है SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड को बाइंड करेगा। इट विल बाइंड टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। ओके, एंड इट विल नॉट अलाउ देम टू रिकॉइल, रिकॉइल होने से प्रिवेंट करेगा। ओके, सो SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट्स टू स्ट्रैंड फ्रॉम रिकॉइलिंग। ओके, so in this way there is the role of different enzymes for unwinding। ठीक है बच्चों, तो थर्ड स्टेप में हमने अनवाइंडिंग देखे। अनवाइंडिंग यानी दोनों डीएनए की स्ट्रैंड जो स्पाइरली कॉइल्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ओके, और अलग अलग तीन अलग अलग टाइप के एंजाइम उसको ऐसा करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, तो बच्चों दोनों डीएनए की स्ट्रैंड जो सेपरेट हुई उसमें से एक स्ट्रैंड है सपोज ये जो 3 प्राइम की तरफ फ्री हुई और दूसरी 5 प्राइम की तरफ फ्री हुई। सपोज ये 3 प्राइम की तरफ फ्री हुई वाली स्ट्रैंड 5 प्राइम है, इट इज 3 प्राइम। ओके, सो इन दिस वे देयर विल बी नाउ 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। ओके, अब बच्चों इस स्टेज में अगर हम डीएनए को ऑब्जर्व करते हैं तो डीएनए इट विल बी अपीयर्स लाइक ट्यूनिंग फोर्क, one physical instrument, tuning fork, yeah, we can say bicep structure. Okay, and therefore it is now known as formation of replicating fork or replication fork। तो क्या तैयार हुआ अनवाइंडिंग के बाद, ये बाइसेप स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको हमने बोले नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन or replicating fork, bicep structure. Okay, so in this way bicep structure replicating fork form हो। Okay, अब बच्चों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ओके, अब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई है एक दूसरे से। वन स्ट्रैंड इट इज फ्री टुवर्ड 3 प्राइम, second DNA की strand it will be free toward 5 prime। okay, and on this separated strand now there have to be formation of new strand। ये separated strands पर अब DNA की नई strand ऐसे बनेगी। तो बच्चों अब DNA की strand न्यू strand अगर बनना है तो there is the requirement of very important enzyme। okay, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम का यहाँ पर रोल आता है। सपोज ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड पर न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बनाना है। ओके, तो देयर विल बी नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ वन ऑफ द एंजाइम
that enzyme it is now DNA polymerase. DNA polymerase, ठीक है। तो डीएनए की ओल्ड स्ट्रैंड पर न्यू स्ट्रैंड अगर बनाना है तो वी विल रिक्वायर नाउ डीएनए पॉलीमरेज। बच्चों ये डीएनए पॉलीमरेज की कुछ लिमिटेशंस है। तो डीएनए पॉलीमरेज की पहली लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, इट कैन नॉट स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। वो स्ट्रैंड फॉर्मेशन को कंटिन्यू तो कर सकता है पर नए स्ट्रैंड का इनिशिएशन फॉर्मेशन का इनिशिएशन नहीं कर सकता, नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। ये उसका एक लिमिटेशन है। ओके, दूसरा लिमिटेशन है कि वो हमेशा नई स्ट्रैंड जो बनाएगा इट विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अपने आप में वो जो स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड बनेगी डीएनए पॉलीमरेज जिसको बनाएगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनेगी। ओके, या ये कहे कि ओल्ड स्ट्रैंड के 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगी। ओके, तो ये कुछ लिमिटेशंस है डीएनए पॉलीमरेज के, और जिसके चलते ये दोनों स्ट्रैंड पर, अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है इसमें से एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे जो 3 प्राइम की तरफ फ्री हो गई, इट इज नाउ नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। सेकेंड स्ट्रैंड जो 5 प्राइम की तरफ ओपन हो गई उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी लैगिंग टेम्पलेट। लैगिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट रेफर्स ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड एंड लीडिंग टेम्पलेट। लीडिंग टेम्पलेट किसको कहेंगे बच्चों? जो 3 प्राइम की तरफ फ्री हुई, जो 5 प्राइम की तरफ फ्री हुई लैगिंग टेम्पलेट। सो इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 टेम्पलेट, लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट, दैट इज द ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, नाउ ऑन दिस ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड देयर हैव टू बी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो डीएनए पॉलीमरेज के गाइडेंस में होगा। नाउ हियर देयर विल बी, जब यहां पर नई स्ट्रैंड बनने की बारी आएगी तब उस नई स्ट्रैंड का इनिशिएशन डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहले इनिशिएशन करने के लिए देयर विल बी नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए। यहां पर आरएनए का एक स्मॉल सेगमेंट बनेगा पहले, विच इज नाउ नोन एज आरएनए प्राइमर। तो पहले आरएनए प्राइमर बनेगा। आरएनए प्राइमर 5 प्राइम के डायरेक्शन से 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक आरएनए का फ्रैगमेंट टुकड़ा है विच इज अबाउट 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, उसका ये जो एंड है इट विल हैव फ्री OH फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब इसके आगे ये OH को ज्वाइन करके डीएनए पॉलीमरेज आगे की चेन बना पाएगा। वो उसको पकड़ के आगे की चेन बनाएगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। ठीक है, एंड इन दिस वे इट विल कंस्ट्रक्ट द न्यू स्ट्रैंड। ओके, तो इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन दिस पर्टिकुलर लीडिंग टेम्पलेट। ठीक है बच्चों, तो लीडिंग टेम्पलेट पर जो स्ट्रैंड बन रही है उसका इनिशिएशन कौन कर रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है? आरएनए प्राइमर। ओके, आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम की मदद से बन रहा है और वो इनिशिएशन कर रहा है, और इनिशिएशन होने के बाद अब उसका कंटिन्यूएशन या डीएनए पॉलीमरेज करेगा और डीएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड बनाएगा विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द ओल्ड स्ट्रैंड। ओल्ड स्ट्रैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है बच्चों, तो लीडिंग टेम्पलेट पर जो न्यू स्ट्रैंड बनी है वो देखो कैसे बन रही है। वो इट्स फॉर्मेशन इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, इनफैक्ट कोई भी नई स्ट्रैंड बनेगी यहाँ या यहाँ पर जो भी नई स्ट्रैंड बन रही है इट्स फॉर्मेशन इट विल बी टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि हमने देखे थे कि ये लिमिटेशन है डीएनए पॉलीमरेज का, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड बनने जा रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम। इट्स फॉर्मेशन इट विल बी टेक्स प्लेस टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क। ये डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, तो टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क के तरफ। ओके,
थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स फॉर्मेशन इट विल बी नाउ कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसका फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ओके, तो ये जो न्यू स्ट्रैंड है लीडिंग टेम्पलेट के अगेंस्ट में जो बन रही है, जो कंटिन्यूअस बन रही है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क बन रही है, 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रही है, इट इज नाउ नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ये कहलाएगी लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और एक कैरेक्टर लीडिंग स्ट्रैंड इट विल फॉर्म अर्लियर, ये पहले बन रही है। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। लैगिंग टेम्पलेट पर अब ये 5 प्राइम है, नई स्ट्रैंड जो बनने जा रही है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बनेगी। ओके, और डायरेक्शन दोनों की सेम होना चाहिए। तो अब यहां पर एक स्मॉल आरएनए प्राइमर बनेगा, सो आरएनए प्राइमर। ओके, एंड फ्रॉम दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए की स्ट्रैंड को कंटिन्यू करे। ओके, सो इन दिस वे एक यहां पर छोटा सा पीस बना नई डीएनए स्ट्रैंड का। ओके, फिर दूसरा पीस बनेगा इन द सेम मैनर, तो स्मॉल आरएनए प्राइमर एंड देन देयर विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड लाइक दैट। ओके, which will be start with 5 prime to 3 prime, again second fragment 5 prime to 3 prime। okay, तो सेकेंड स्ट्रैंड लैगिंग टेम्पलेट पर जो न्यू स्ट्रैंड बन रही है वो कंटिन्यूअस नहीं बन रही है, बट इट विल बी नाउ डिसकंटिन्यूअस। ओके, एंड इट्स फॉर्मेशन इट विल बी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में वो बन रही है। ओके, हर फ्रैगमेंट्स के लिए there will be requirement of individual RNA primer, okay, and formation it will be takes place from 5 prime to 3 prime। ठीक है बच्चों, तो दोनों स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग होगा, अलग अलग पैटर्न से होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के लिमिटेशंस के कारण। लीडिंग स्ट्रैंड जो बन रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, ओल्ड स्ट्रैंड के 3 प्राइम से 5 प्राइम, और अपने आप में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इनिशिएशन के लिए उसको एक ही आरएनए प्राइमर लगेगा और फिर वो स्ट्रैंड को कंटिन्यू किया जाएगा बाय डीएनए पॉलीमरेज। उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है और टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क हो रहा है। ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में। लैगिंग स्ट्रैंड थोड़ी अलग तरीके से बन रही है। लैगिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस नहीं बन रही है, पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बन रही है। ओके, और वो जो फ्रैगमेंट्स है उसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। सो दे आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इंडिविजुअली हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के लिए देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू आरएनए प्राइमर। हर एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ओके, नो डाउट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी जो बनेंगे वो इंडिविजुअली 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनेंगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में नहीं। तो इनफैक्ट कोई भी डीएनए ओल्ड स्ट्रैंड पर न्यू स्ट्रैंड जो बनने जा रही है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बनेगी। ठीक है, तो यहां पर भी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनने जा रही है, बट इट्स फॉर्मेशन इट विल बी नॉट कंटिन्यूअस बट इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके, और उसका जो डायरेक्शन है बनने का इट इज अपोजिट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क। रेप्लिकेटिंग फोर्क के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इन दिस मैनर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दैट 2 स्ट्रैंड्स। अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज पूरा काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियो चेन बनाने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नई स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोप्लाज्म से लेके आया, फिर उसने चेन बनाया, फिर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश की, फिर उसने प्रूफ रीडिंग की, फिर उसने जो अनवांटेड या अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेस है उसको रिमूव किया, यानी प्रूफ रीडिंग करने के बाद में। ठीक है, तो ये सब काम डीएनए पॉलीमरेज यहां पर कर रहा है। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज होने के बाद ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है उसको एक साथ जोड़ा जाएगा, और उसको ज्वाइन करने के लिए अब देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन एंजाइम। नेम ऑफ द एंजाइम इट इज नाउ डीएनए लाइगेज।
तो डीएनए लाइगेज एंजाइम ये सब छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को कंटिन्यू ज्वाइन करेगा। ओके, सो इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, न्यू स्ट्रैंड्स अगेंस्ट दिस ओल्ड स्ट्रैंड। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड में हमने देखा, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इट विल बी लीड्स फॉर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। सो फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड हमने देखे। फाइनली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। बच्चों लीडिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनते जा रहा है, ओके, और लैगिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनते जा रहा है। ये पहला फ्रैगमेंट बना, ये दूसरा बना, फिर फ्रैगमेंट्स ज्वाइन हो गए। ओके, अब अनवाइंडिंग इट विल बी प्रोसीड्स बियॉन्ड द ओरिजिन। अनवाइंडिंग इधर भी पहुंच गई, सो दैट इज अनवाइंडिंग। ओके, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनते जा रही है। सो इन दिस वे जैसे जैसे अनवाइंडिंग होगी लीडिंग स्ट्रैंड आगे बढ़ते जाएगी। लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो इस डायरेक्शन में बनते जा रहे हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट 5 प्राइम 3 प्राइम बना, फिर और बना, फिर और बना। ओके, जैसे जैसे अनवाइंडिंग होगी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऐसे बनते जाएंगे। ओके, अनवाइंडिंग या पूरा डीएनए मॉलिक्यूल एंड होने के बाद अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि ऑन दिस बोथ द स्ट्रैंड्स there will be formation of new DNA strand like that. Okay, so in this way at one stage completely there will be formation of 2 new DNA molecules. So that is one DNA molecule, that is the second DNA molecule. So in this first DNA molecule it is one strand parental, second strand newly synthesized. In second DNA molecule again one strand parental, second newly synthesized. So it is सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चों, तो रेप्लिकेशन के बारे में आज हमने पढ़े। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।